Dear students, today we will discuss about miscellaneous questions on chapter 4. As I earlier told you that miscellaneous exercise is most important exercise from examination point of view. So you do not leave at least one example or at least one question of miscellaneous exercise. You have to solve all the questions of miscellaneous exercise and example of every chapter. So for this question number 1, prove that the determinant is independent of theta. So first of all you should know about independent of theta. Independent of theta means ये जो डिटरमिनेंट है ये थीटा पे डिपेंड नहीं करना चाहिए. मीन्स यू आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम योर पेरेंट्स इफ यू आर एल्डर और यू गेट ए जॉब. मीन्स आपकी जो मंथली इनकम यदि स्टार्ट हो जाती है तो आप क्या है अपने पेरेंट्स की डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है. मीन्स आपको जो एक्सपेंडिचर है वो आप अर्न करने लग जाते हो. ठीक है, तो लाइक दैट जब भी हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो इस डिटरमिनेंट के अंदर थीटा की वैल्यू नहीं बचनी चाहिए. इसका मीनिंग हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. तो फॉर दिस you can expand along any row, any column. You need not to apply any of you should also apply properties of determinant, or you can directly solve it. If we directly solve it, then expanding along R1, expanding along R1, expanding along R1, first row x, eliminate first row, first column, minus x 1 1 x, then minus sin theta, first second column, first row, minus sin theta 1 cos theta x, then plus cos theta, this is minus sin theta minus x cos theta and 1. Clear? Now x into minus x square minus 1 minus sin theta into minus x sin theta minus cos theta plus cos theta into minus sin theta plus x cos theta. Clear? If we expand this is minus x cube minus x. If we multiply minus plus x sin square theta minus plus sin theta cos theta. This is minus sin theta cos theta plus x cos square theta. So if we cancel plus sin theta minus sin theta cancel from both of these, minus x cube minus x we take common x. So this is sin square theta plus cos square theta, or as we know that sin square theta plus cos square theta equals to 1. If sin square theta plus cos square theta equals to 1, then minus x cube minus x plus x, we cancel x by x, the result is minus x cube, which is independent of theta. Means there is no term of theta. तो इंडिपेंडेंस, मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंसी इज मीन्स वो टर्म उसके अंदर नहीं आनी चाहिए. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट को बगैर एक्सपेंड किए वी हैव टू प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट को बगैर एक्सपेंड किए. क्वेश्चन 2, प्रूव दैट a square bc b square
सी ए, सी स्क्वायर ए बी इक्वल्स टू 1 ए स्क्वायर ए क्यूब 1 बी स्क्वायर बी क्यूब 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। ओके, विदाउट एक्सपेंडिंग इट, इसको बगैर एक्सपेंड किए हमने इसको सॉल्व करना है कि ये इसके इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड वी टेक ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर सी ए, सी स्क्वायर ए बी। We have to convert this determinant into this. So for this, what we can do? Multiplying and divide by ABC. As we know that any function or any value is multiplied by same term and divided by same term, then there is no effect in the result. So for this, if we multiply A by first row, B by second row and C by third row, so what we can get? 1 upon ABC, this is A square A cube ABC, this is B square B cube ABC, this is C square C cube ABC. Clear? From third column we take common ABC. If we take common ABC from third column, ABC, the result will be A square A cube 1, B square B cube 1, C square C cube 1. Clear? We cancel ABC by ABC. Clear? If we interchange, means next operation is operate C3 इंटरचेंज C2 और C3 को हमने इंटरचेंज कर दिया, और क्या राइट कर सकते हैं C2 C3। In properties of determinant we studied that if we interchange one interchange we take one minus sign. So here A square B square C square 1 1 1 A cube B cube and C cube. Clear? Again one more interchange, operate C1 interchange with C2. Clear? So again we take one more sign, so minus minus plus, result is 1 1 1 A square B square C square A cube B cube C cube, which is right hand side, जो कि क्या है right hand side. So by simple way we can solve this. Similarly we can do question number 3. So question number 3, try yourself. Question number 3, try yourself. Expanding along any row or any column. किसी भी रो और किसी भी कॉलम से आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4, if ABC are real number, if ABC are real numbers, ABC are real number, and important question है B plus C, C plus A plus B, C plus A plus B,
बी प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इक्वल्स टू 0। मीन्स ये डिटरमिनेंट हमें 0 के इक्वल गिवन है। शो दैट either a plus b plus c equals to 0 or a equals to b equals to c। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीन्स इस डिटरमिनेंट को हम 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 आना चाहिए और a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी आना चाहिए। ठीक है, तो फॉर दिस सॉल्यूशन डिटरमिनेंट इज दिस इज द डिटरमिनेंट। आवर डिटरमिनेंट इज b प्लस सी, c प्लस a प्लस b, c प्लस a प्लस b, b प्लस c, a प्लस b, b प्लस c एंड c प्लस a इक्वल्स टू 0 विच इज गिवन। तो फॉर सिंप्लिसिटी, इसकी सिंप्लिसिटी के लिए क्या करें हम, हमारी टेंडेंसी होनी चाहिए कि किसी एक रो या एक कॉलम को हम क्या कर दें, 1 1 बढ़ा दें। यदि एक रो या एक कॉलम को 1 1 बढ़ा देते हैं तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑपरेट, व्हाट कैन बी ऑपरेट, either c1 tends to c1 plus c2 plus c3 और r1 tends to r1 plus r2 plus r3, कोई भी आप मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस डिटरमिनेंट r1 tends to r1 plus r2 plus r3 means 2 into a plus b plus c, 2 into a plus b plus c, 2 into a plus b plus c। क्लियर? देन c plus a plus b, then a plus b, b plus c, then b plus c, c plus a, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। फ्रॉम r1 we take common 2 into a plus b plus c, तो if we take common 2 into a plus b plus c, the result will be 1 1 1, c plus a plus b, b plus c, a plus b, b plus c, c plus a equals to 0 means either this 0 or this 0। क्लियर? तो इसके लिए क्या बनेगा हमारे पास, a plus b plus c equals to 0, एक टर्म लिया और ये 0 है, ये 0 है तो ये टोटल टर्म 0। अब इसको एक्सपेंड करने के लिए क्या करें कि 2 को 0 बनाएं और एक्सपेंड करते हैं। तो 2 को 0 बनाएं और एक्सपेंड करने के लिए क्या करें, ऑपरेट r1 tends to r1 minus r2 and r2 tends to r2 minus r3। क्लियर? तो देन दिस इज r1 minus r2, this minus this 0, c plus a minus b तो c minus b, b से b कैंसिल, a minus c। नेक्स्ट वन r2 minus r3 0, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, a minus c, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, b minus a, और नेक्स्ट वन इज c plus a equals to 0। Now expanding along R1। अब R1 के along expand करते हैं तो expanding along R1 के along expand करते हैं तो ये 2 तो 0 है, तो eliminate first row and third column, multiply this and this, तो c minus b into b minus a minus, तो माइनस माइनस प्लस a माइनस, सॉरी बोथ आर a माइनस c, तो माइनस इंटू a माइनस c होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मीन्स यहाँ से हमें क्या लेके आना है, यहाँ से हमें लेके आना है कि a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंड करें तो क्या होगा, bc माइनस बी स्क्वायर
minus AC plus AB. This is minus A square minus C square plus 2AC equals to 0. So our result will be BC plus AB plus AC minus A square minus B square minus C square equals to 0. This point is important. इस पॉइंट को नोट कीजिए कि इसको हम कैसे सोल्व करें. We multiply and divide by 2. If we multiply and divide by 2, result will be same. So this is 1 by 2. Here 2BC plus 2AB plus 2AC minus A square minus B square, sorry 2 C square equals to 0. If we take minus common ले लें, minus 1 by 2 एंड एक ए स्क्वायर यहाँ से ले लिया, एक बी स्क्वायर यहाँ से ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक 2ab यहाँ से ले लिया, माइनस मैंने कॉमन लिया तो माइनस 2a. क्लियर. अब एक बी स्क्वायर यहाँ से ले लिया, एक सी स्क्वायर यहाँ से ले लिया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2ac और ये माइनस 2ac, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये तीनों माइनस हो गए, तीनों प्लस हो गए. अब क्या बचा, एक बी ए स्क्वायर बचा है, एक सी स्क्वायर बचा है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और इक्वल्स टू 0. इसको क्या राइट कर सकते हैं, माइनस 1 by 2 a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस, इसको क्या राइट कर सकते हैं, b माइनस सी होल स्क्वायर, इसको क्या राइट कर सकते हैं, c माइनस a और a माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. But we know that these three are square quantity and square quantity is always positive. तो result of three positive quantities does not equal to 0. थ्री पॉजिटिव क्वांटिटी का रिजल्ट कभी भी 0 नहीं होगा. नहीं 0 होगा तो ये पॉसिबल कब है, 0 के इक्वल कब पॉसिबल है, जब a माइनस बी 0, b माइनस सी इक्वल्स टू 0 एंड a माइनस सी इक्वल्स टू 0. तो फ्रॉम दीज थ्री वी कैन कंक्लूड दैट a equals to b equals to c. So by first way we prove that a plus b plus c equals to 0, and by second way we prove that a equals to b equals to c. So this is most important question. Clear? This point is not. This point को note. Clear? Next one is fifth. Solve the equation. अब किसी क्वेश्चन में हमें गिवन होता है प्रूव दैट, तो मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. किसी क्वेश्चन में हमें गिवन होता है सोल्व दिस मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. क्लियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर टेंडेंसी इज प्लीज रीड एनी क्वेश्चन एट लीस्ट 2 times और ट्राई टू फाइंड आउट दैट व्हाट वी have to solve and what we are given. हमें क्या गिवन है और क्या हमें सोल्व करना है. ये दो चीजें यदि आप फाइंड कर लोगे तो क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. क्लियर. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इन क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व द इक्वेशन. Solve the equation x plus a x plus a x plus a equals to 0. A is not equal to 0. Given that a is not equal to 0. a 0 नहीं. ठीक है. तो फॉर दिस सबसे पहले हम कोशिश करें क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कुछ कॉमन नहीं ले सकते. ठीक है. तो क्या करें, देखिए सिमेट्री बन रही है. आइदर ऑपरेट r1 टेंस टू r1 प्लस r2 प्लस r3 और c1 टेंस टू c1 प्लस c2 प्लस c3. मोस्ट प्रोबेबली 80% क्वेश्चन में ये फार्मूला अप्लाई होता है, ये ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं. ठीक है. तो देखिए इफ वी अप्लाई दिस देन
3x plus a here, 3x plus a, 3x plus a. This is x, x plus a, x, 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 x plus a equals to 0. Clear? Take common from R1, 3x plus a common. 3x plus a common, this is 1, 1, 1. X, x plus a, x, 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 x plus a equals to 0. So from here, what we can equate? 3x plus a equals to 0. That implies x equals to minus a by 3. एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया. ठीक है. नेक्स्ट, किसी भी रो या कॉलम में दो 1 1, एक रो या एक कॉलम 1 1 आते ही हम क्या कर सकते हैं? इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? वही सेम ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं. क्या होगा? ऑपरेट R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R2 टेंस टू R2 माइनस R3. तो दिस इज R1 माइनस R2, दिस माइनस दिस 0. इसमें से सब्सट्रैक्ट करते हैं माइनस ए, इसमें से सब्सट्रैक्ट करते हैं 0, इसमें से सब्सट्रैक्ट करें 0, इसमें से सब्सट्रैक्ट करें ए, इसमें से सब्सट्रैक्ट करें माइनस ए. और दिस इज 1 x, x plus a equals to 0. Expanding along R1, expanding along R1. यदि R1 के along एक्सपेंड करते हैं तो एलिमिनेट फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो आवर रिजल्ट विल बी a स्क्वायर. ये 0 विच इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि गिवन है a इज नॉट इक्वल टू 0. तो आवर रिजल्ट विल बी x इक्वल्स टू माइनस a बाई 3. क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6, प्रूव करना है. प्रूव दैट ए स्क्वायर BC AC प्लस C स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस AB B स्क्वायर AC, AB B स्क्वायर प्लस BC एंड C स्क्वायर इक्वल्स टू 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर. ये क्वेश्चन मोस्टली डिपेंड करते हैं फर्स्ट ऑपरेशन पे. यदि हम फर्स्ट ऑपरेशन अच्छा लगा देते हैं तो हम इजीली सभी क्वेश्चन आगे का जो प्रोसीजर है हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. तो इसके लिए हम क्या करें? देखिए, सबसे पहले राइट हैंड साइड देखो कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है. तो हमें रिक्वायरमेंट है 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर. तो फर्स्ट अब ऑपरेशन ऐसा लगाएं कि एटलीस्ट 2 फैक्टर कॉमन आ जाए. तो यहाँ से हम डायरेक्टली यदि देखते हैं तो क्या क्या कॉमन आ सकता है? यहाँ से A कॉमन ले सकते हैं, R1 से, C1 से, C2 से B, C3 से C कॉमन ले सकते हैं. तो क्या करें इसके लिए? A B C कॉमन. यहाँ से A कॉमन लिया तो A प्लस B B. यहाँ से B कॉमन लिया तो C B B प्लस C. यहाँ से C कॉमन लिया तो A प्लस C, और यहाँ पे A और यहाँ पे C. तो A B C तो कॉमन आ गया हमारे पास. ठीक है. नेक्स्ट वन क्या चेक करें? नेक्स्ट यदि चेक करते हैं हम तो क्या करें? किन्हीं 2 को 0 बना दें. 2 को 0 बनाएं, 1 को 0 बनाएं, जो पॉसिबल होगा करें. ठीक है. तो देखिए, यदि इसको हम 0 बनाना चाहते हैं तो क्या करें? R1 टेंस टू C3 टेंस टू C3 माइनस C1 प्लस C2 कर दें, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे. तो इसके लिए क्या ऑपरेशन लगाएं? ऑपरेट
C3 टेंस टू C3 माइनस C1 प्लस C2। C1 और C2 को ऐड करके इसमें सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये 0 बन जाएगा। तो क्या होगा, ABC तो बाहर है हमारे पास, यहाँ से AC, A प्लस बी बी, बी बी प्लस सी, इन दोनों को ऐड करके सब्सट्रैक्ट किया 0, इन दोनों को ऐड करके सब्सट्रैक्ट करते हैं -2b, इन दोनों को ऐड करके सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास -2b। क्लियर। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, -2b कॉमन ले सकते हैं C3 से। इफ वी टेक C3 से -2b कॉमन तो -2a स्क्वायर ab स्क्वायर c बचा क्या हमारे पास, AC 0, a प्लस बी बी एंड दिस इज 1, यहाँ पे बी प्लस सी एंड 1। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको 0 बना देंगे, इसको 0 बना के एक्सपेंड करेंगे तो रिजल्ट मिल ही जाएगा। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन लगाए, ऑपरेट, ये क्या है R2, तो R2 टेंस टू R2 माइनस R3, R2 में से R3 सब्सट्रैक्ट कर दें, क्या बचेगा हमारे पास -2ab स्क्वायर c। तो फर्स्ट इज AC 0, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट किया a, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट किया -c, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट किया 0, दिस इज b प्लस c 1। अब किसके अलावा एक्सपेंड करें, वी एक्सपेंड अलोंग दिस इज C3, एक्सपेंडिंग अलोंग C3, एक्सपेंडिंग अलोंग C3 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो C3 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा, -2ab स्क्वायर c, इसकी से मल्टीप्लाई -AC माइनस AC, तो -2AC, तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर विच इज राइट आंसर। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ क्या है, प्रैक्टिस है। यदि आप क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली उनको सॉल्व कर पाओगे, और 2 या 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको डायरेक्ट पता लगने लग जाएगा कि वो जो क्वेश्चन है उसमें हम किस टाइप का कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ हिंट है, ट्राई करना है। ए और बी दो मैट्रिक्स है, ए इनवर्स गिवन है, क्वेश्चन 7 ए इनवर्स गिवन है और हमें बी मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी इनवर्स क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी पता है हमें, ए इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ए इनवर्स तो हमें डायरेक्ट गिवन है, बी इनवर्स फाइंड करना है, और ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप खुद ट्राई करोगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में भी वेरिफिकेशन आपने खुद ही करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारे पास, ए मैट्रिक्स गिवन है, फर्स्ट है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ये वेरीफाई करना है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पहले इस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करने के बाद हम उसका इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, मैट्रिक्स का पहले इनवर्स निकालेंगे और फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर, दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। और सिमिलरली यू कैन डू, कोई मैट्रिक्स का इनवर्स है उसका अगेन इनवर्स निकालोगे तो वो मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप इनवर्स फाइंड करोगे, उसका अगेन इनवर्स फाइंड करना, वो मैट्रिक्स ए के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, क्योंकि इनवर्स के क्वेश्चन हम बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, तो बार बार इन ऊपर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। क्लियर। तो क्वेश्चन 7 and 8 ट्राई योरसेल्फ। If you do not understand, then please ask me. Next one is question number 8, evaluate. Sorry, question number 9, evaluate.
दिस इज डिटरमिनेंट एक्स वाई एक्स प्लस वाई वाई एक्स प्लस वाई एक्स एक्स प्लस वाई एक्स वाई, इसको इवेलुएट करना है। जो भी इवेलुएशन है, यदि ये नहीं पूछ रखा है कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स, तो आप डायरेक्टली भी उसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी यूज़ करके आप सोल्व करो, क्योंकि प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है, हम क्वेश्चंस को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, देखिए सिमिलरिटी बनती है तो क्या ऑपरेशन लगाए, ऑपरेट C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, या R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, दोनों में सेम सिमेट्री बन रही है हमारे पास। ठीक है, तो क्या होगा, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, वाई एक्स प्लस वाई एक्स, एक्स प्लस वाई एक्स वाई। क्लियर, तो फर्स्ट कॉलम से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस वाई कॉमन, क्या हो गया 1 1 1, वाई एक्स प्लस वाई एक्स, दिस इज एक्स प्लस वाई एक्स वाई। तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी एक रो या एक कॉलम 1 1 आते ही तो इजीली हो जाता है। अब 1 1 आ गया हमारे पास, 1 1 आ गया तो क्या ऑपरेशन लगाए कि नहीं, 2 को 0 कर दें। अब इन 2 को हम 0 करना चाहते हैं, इन 2 को यदि 0 करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑपरेट C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3। ऑपरेशन लगभग सेम ही है सभी में, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो दिस इज, इसमें से सब्सट्रैक्ट करें 0, इसमें से सब्सट्रैक्ट करें माइनस एक्स, इसमें से सब्सट्रैक्ट करें वाई, C2 में C3 सब्सट्रैक्ट करें 0, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। क्लियर, थर्ड वन इज 1 एक्स वाई, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग यदि एक्सपेंड करते हैं तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, रिजल्ट विल बी दिस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड दिस इज माइनस वाई स्क्वायर। तो आवर रिजल्ट विल बी 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर, तो सिमिलरली यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है, C1 डायरेक्टली 1 1 दे रखा है, तो किन्हीं 2 को 0 करेंगे एंड एक्सपेंड करेंगे। तो इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन 1 to 10। इन नेक्स्ट वीडियो रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड। तो फॉर मैथमेटिक्स इफ यू डू बेटर देन यू यूज ट्रिपल W मीन्स राइट राइट एंड राइट, राइट एंड राइट मीन्स जितना ज़्यादा आप राइट करोगे उतना ही ज़्यादा मैथमेटिक्स में अच्छा कर पाओगे। विदाउट राइटिंग पार्ट यू कैन डू नॉट डू बेटर। क्लियर, थैंक यू।